Hello everyone. Today I'll be doing applications of electrolysis. Now this is a topic that I had said that I will do, and yes, today we'll be doing this topic application. Let me just turn it this way. This is the way we are doing right now. Yeah. So today applications of electrolysis. So now electrolysis के applications में से we have three things to study. Now let's write properly, and by that time as I write, let me just give you one heads up about what we are doing today. So application of electrolysis में we are going to be studying about the commercial applications. क्यों electrolysis हम करेंगे, कुछ जगहों पे हमें electrolysis करने से profit मिलता है इंडस्ट्रीज में कैसे. पहले हम देखेंगे electroplating, फिर electro refining of metals, electroplating also with metals only, electro refining of metals, and last में हम देखेंगे electrometallurgy, that is extraction of metals. Okay, and that will electrometallurgy or extraction of metals is something that will bridge this chapter to the next chapter, that's metallurgy. Okay, and these chapters are something that you have to make notes of. So by the end of this video I will show you the complete notes of whatever we have done, and you will get an idea, and then we'll be doing some brainstorming question practice. Okay, so applications of electrolysis. Number one, let us begin with electroplating. Okay, number one, what is electroplating? Okay, electroplating, it is a process in which a thin film of a metal, एक कोई तो मेटल होता है, ठीक है, उसका एक थिन फिल्म होता है. मेटल लाइक गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, निकेल हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है. ऐसा एक मेटल का थिन फिल्म ना एट्सेट्रा गेट्स डिपॉजिटेड, इसे हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है. इट गेट्स डिपॉजिटेड, कहाँ पे डिपॉजिट होता है? ऑन अनदर, और एक मेटलिक आर्टिकल पे, ठीक है, और अनदर मेटलिक आर्टिकल, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम काफ़ी बार बोलते हैं ना कि अरे ये ज्वेलरी तो बहुत अच्छी है, ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है. इसका मतलब क्या बना कि उस पर क्या गोल्ड के प्लेट्स हैं? करीबन वही, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है. तो जब हम एक थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, नॉट एल्यूमिनियम, सॉरी आई रोट एल्यूमिनियम ओवर हियर, यहाँ पे आपका क्रोमियम होगा, ठीक है. तो what is electroplating? Electroplating is the process of electroplating is the process in which a thin film, electroplating is the process, फिर से मेरे साथ दोहराइए, electroplating is the process in which a thin film, electroplating is the process in which a thin film of metal like copper, electroplating is the process in which a thin film of metal like gold, सिल्वर, से गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, फिर निकेल, फिर क्रोमियम, इनकी जो लेयर्स है एट्सेट्रा, दे गेट डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटेलिक आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और एक मेटेलिक आर्टिकल पे इनकी डिपॉजिशन हो जाती हैं. कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की हम यहाँ पे मदद लेते हैं. तो फिर से की टर्म्स यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं. हाउ व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस इन विच द फिल्म ऑफ अ मेटल, कौन से मेटल्स आ गए हैं यहाँ पे? The film of a metal like gold, silver, nickel, chromium, etc. gets deposited on another metallic article with the help of electricity. All the underlined words are keywords, right? Okay, so this is called electroplating. अब हम क्यों electroplate करें? This we will come to reasons of electroplating. Why are we electroplating? Reasons for electroplating.
हमको क्या ज़रूरत है एक मेटेलिक आर्टिकल को एक दूसरे ऐसे गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम, इन सारे मेटल्स की एक थिन फिल्म चढ़ाने की हमें ज़रूरत क्या है और एक मेटल्स पे? देखो, फर्स्ट हो गया आपका डेकोरेशन के लिए, यहाँ से आता नहीं है कुछ भी, यहाँ से डेकोरेशन के लिए हो गया, ठीक है, हम देते हैं। फिर टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड कोरोशन, कि वो जो असली चीज़ है वो रस्ट ना हो, वो कोरोड ना हो, तो रस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोरोजन के लिए यूज़ होता है, हम जिंक का प्लेटिंग करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए पहला है डेकोरेशन, ऐसे ज्वेलरी वगैरह के साथ जो द ब्रास ऑब्जेक्ट्स है फ्रीक्वेंटली प्लेटेड विद सिल्वर, ओके। सो दैट्स व्हाट हैपन्स। Okay, so yeah, a little bit of interruption. I'm very sorry, all that goes on. Okay, so reasons for electroplating we've already discussed. There are two reasons. Number one, we have decoration purposes. It's used for decoration. And number two, it's used to protect from rusting and corrosion. Okay, now there are some very important conditions that have to be maintained for electroplating. So I want you to know those conditions. This is very important, like too important. So I want you to know these conditions, right? And then we'll cover two things, that is electroplating an article with silver. अगर आपको सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है एक आर्टिकल के ऊपर, और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमें मतलब समझ आ गया. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच अ थिन फिल्म ऑफ अ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम इज डिपॉजिटेड ऑन अनदर आर्टिकल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये है क्यों करते हैं? डेकोरेशन के लिए करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये क्या होता है, रस्टिंग से, कोरोशन से, इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए भी हम बनाते हैं. ठीक है, तो इसका ही मतलब इसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. अब ये हमें समझ में आ गया. अब हम दो चीज़ें सीखेंगे कि एक आर्टिकल के ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग कैसे चढ़ाएं, मतलब हाउ टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आर्टिकल विद सिल्वर, और एक हम देखेंगे निकल की कोटिंग कैसे चढ़ाएं. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, ये दो चीज़ें हम देखेंगे. ओके, अच्छा, तो आ जाते हैं हम कुछ कंडीशंस पे. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ रूल्स हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. ठीक है, वो क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या क्या रूल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, आओ वहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत समय, मतलब एवरी ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. नंबर 1, द आर्टिकल टू बी प्लेटेड, जिसके ऊपर आपको कोटिंग चढ़ानी है. से मेरे को सिल्वर की कोटिंग चम्मच के ऊपर चढ़ानी है, तो चम्मच हमारा आर्टिकल हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेट करने वाले हैं. सो द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, इस आर्टिकल को हम ऑलवेज एंड कैथोड पे बिठाएंगे. ठीक है, इस टू बी प्लेस्ड एट अ कैथोड, इसे ही हम कैथोड बनाएंगे. अगर मैं सेम मेरे को एक क्या करना है, एक सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है एक चम्मच पे, तो उस चम्मच को ही मैं कैथोड बनाऊंगी. तो जो आर्टिकल इलेक्ट्रोप्लेट होना है उसे हमें कैथोड पे डालना है. सो द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज प्लेस्ड एट द कैथोड. ये हमारा रूल नंबर 1 है. ठीक है,
द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज प्लेस्ड एट द कैथोड। अब इसका कारण क्या, उसके ऊपर भी हम विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके ऊपर भी हम थोड़े से डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि वो भी आई विल टेल यू कि ऐसा भी क्यों होता है। हर के लिए मैं रीज़न बताऊंगी आपको। ये मैं आपको बताने वाली हूँ असर्शन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लू में रीज़न, ठीक है। असर्शन रीज़न ऐसे करते करते हम चलेंगे, ओके। चलो, सो फर्स्ट इसका रीज़न है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन के वक़्त क्या होता है, द मेटल, हमारा जो मेटल होता है इज़ ऑलवेज, ये हमें पता है ना, ये तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कैथोड होता है वो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है, ये हमें पता है ना। कैथोड जो होता है हमारा रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है, और जो हमारा एनोड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जब भी हो रहा होता है, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो रहा होता है, अरे हाँ, तो क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। ऑलवेज हमारा मेटल कैथोड पे ही डिपॉजिट हो रहा होता है, एट द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कैथोड पे हमारा कटायन आया, कटायन क्या होता है, मेटल के आयन होते हैं। अब जो कटायन आता है वो स्टेबल हो जाता है ना, आयन्स वो ले लेता है, कैथोड में तो आयन्स ही आयन्स पाए जाते हैं, वो यहाँ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारा जो कटायन है वो मेटल एटम बन जाता है। तो जो मेटल होता है ऑलवेज उसकी डिपॉजिशन कहाँ पे होती है, कैथोड पे। तो सेम मेरे को सिल्वर की कोटिंग करनी है चम्मच पे, तो मेरे को सिल्वर क्या एक मेटल है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, सिल्वर कौन से वाले आयन्स बनाएगा, कटायन बनाएगी कि अनायन बनाएगा। ऑब्वियसली सिल्वर तो खुद एक मेटल है, तो वो जब आयन बनाएगा तो वो कटायन ही होंगे ना। तो ये जो कटायन होते हैं, ये एक जाहिर सी बात है कि ऑलवेज कैथोड की ओर कटायन जाएंगे, और ये कटायन जो होते हैं यही जो है इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कैथोड से और फिर मेटल बन जाते हैं। यानी मेटल ऑलवेज सिल्वर पे डिपॉजिट होते हैं, और हमें डिपॉजिशन तो करानी है। अगर कैथोड पे डिपॉजिशन हो रहा है तो डिपॉजिशन हमें चम्मच पे करानी है ना, तो कैथोड पे चम्मच रख देंगे, ठीक है। सो यही एक रीज़न है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन द मेटल ऑलवेज गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो हमारा कटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑलवेज मेटल कैथोड पे ही डिपॉजिट होता है, इसका ये है कारण, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले पे जाते हैं। सेकेंड हमारा असर्शन है द मेटल टू बी प्लेटेड, से मैं सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ चम्मच पे, तो मेरा चम्मच जाएगा कैथोड पे, और जो मेटल है मतलब जो सिल्वर है उसका पूरा ब्लॉक जाएगा एनोड पे। समझाती हूँ क्यों। तो मेटल टू बी प्लेटेड, जो मेटल मेरे को प्लेट करना है ऑन द आर्टिकल के ऊपर जो मेटल की कोटिंग मेरे को चढ़ानी है, इज़ ऑलवेज मेड द एनोड, इसे मैं एनोड बनाऊँगी। क्यों बनाऊँगी बताती हूँ ना रीज़न में। इसे मैं ऑलवेज एनोड बनाऊंगी, एंड इट हैज़ टू बी, इसे हमें पीरियोडिकली रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज में, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सिल्वर की कोटिंग चलाना चाहती हूँ चम्मच पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे कैथोड की जगह चम्मच को रखूँगी और एनोड की जगह पूरे एक ब्लॉक ऑफ सिल्वर को रख दूँगी, ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर। अब क्या है ना, सिल्वर में से क्या निकलते जाएगा, सिल्वर में से निकलते ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आते जाते हैं ना। तो सिल्वर जो है टाइम टू टाइम छोटा हो जाता है, क्योंकि जो मेटल एनोड है वो आयंस बन के ना कंटिन्यूसली आपके इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, कंटिन्यूसली डिजॉल्व्स एज आयंस एंड हैज़ टू बी रिप्लेस पीरियोडिकली। तो द मेटल एनोड कंटिन्यूसली डिजॉल्व्स एज आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट और द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड हैज़ टू बी रिप्लेस पीरियोडिकली। यही रीज़न है द मेटल एनोड, जो हम मेटल बनाते हैं ना एनोड का, द मेटल एनोड कंटिन्यूसली गॉड तो गलत हो गया, हाँ, continuously dissolves, the metal anode continuously dissolves ions। हमारा जो मेटल एनोड है कंटिन्यूसली वो आयंस देता रहता है सोल्यूशन में, मेटल कंटिन्यूसली डिजॉल्व्स आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है।
एंड इज़ टू बी, उसे हमें पीरियोडिकली इसके लिए रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, यही कारण है इसे रिप्लेस करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल एनोड जो है वो कंटिन्यूसली आयंस को सोल्यूशन में डिसॉल्व करता रहता है। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ पे, तीसरा रीज़न हमारा। तीसरा रीज़न क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल टू बी प्लेटेड। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं सिल्वर की कोटिंग चलाना चाहती हूँ तो Ag+ आयंस रहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, इट इज़ टू बी प्लेटेड। तो जो भी आयंस, जो भी मेटल का प्लेटिंग होना है उसके आयंस इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। ठीक है, ऑन सॉल्ट, मतलब उसका एक सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए मतलब मेटल की प्लेटिंग सूटेबल रहेगी। अब देखते हैं इसका रीज़न क्या है। इसका बच्चों रीज़न है कि द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें मैंने जिस मेटल की कोटिंग चलानी है उसका आयन होगा, उसका सॉल्ट होगा, उसमें उसका आयन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंटिन्यूसली तो आयन्स में डिसोशिएट करता रहेगा ना, ये डिसोशिएट करता है आयन्स ऑफ द मेटल। सो द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स इनटू आयन्स ऑफ द मेटल विच माइग्रेट। तो और मेटल के आयन्स कहाँ पे जाते हैं? विच मेटल्स के आयन ऑब्वियसली कैथोड की हो जाएंगे, कैटायंस, विच माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। मतलब जो भी मेटल की प्लेटिंग करनी है उसके आयन्स यहाँ पे डिसोशिएट करेगा इलेक्ट्रोलाइट, और उसके जो आयन्स है मेटल का वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। ठीक है, इट विल गो टुवर्ड्स द कैथोड एंड आर डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल। वैसे ही डिपॉजिट हो रहा है, एंड आर डिपॉजिटेड। सोचो अगर मैंने एक आयन ले लिया, से सिल्वर का आयन है एक इलेक्ट्रोलाइट में, सिल्वर की ही प्लेटिंग चलानी है, तो सिल्वर का आयन कटायन, सिल्वर का आयन जो है कटायन, वो कहाँ पे जाएगा? वो मेरे कैथोड पे जाएगा ना। कैथोड पे कौन बैठा हुआ है? जिसको मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो हो गया ना मेरी चीज़। तो सो दे आर डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल एटम्स, वो वहाँ पे जाके कैथोड पे न्यूट्रल एटम्स के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स इनटू द आयंस of the metal. Electrolyte dissociates into the ions of the metal which migrates towards the cathode and are deposited as neutral metallic atoms. Neutral metallic atoms में वहाँ deposit हो जाते हैं on the cathode, जहाँ पे हमारा article to be plated रखा हुआ है। ठीक है, चलो फिर नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स इनटू आयंस ऑफ द मेटल विच माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड विच आर डिपॉजिटेड एज न्यूट्रल मेटेलिक एटम्स ऑन द कैथोड। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा क्या है हमारे पास। असर्शन पहला है कि अ लो करंट शुड बी यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। बहुत ज़्यादा करंट नहीं देना, अ लो करंट लो बट लॉन्गर टाइम के लिए। ओके, अ लो करंट शुड बी यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसका कारण क्या हो गया मैं बताती हूँ। हायर करंट, अगर मैं हाई करंट लूँ तो क्या हो सकता है पता है? अनइवन डिपोजिशन लीड्स टू अनइवन डिपोजिशन ऑफ मेटल की डिपोजिशन इवन यूनिफॉर्म भी तो होनी चाहिए। डिपोजिशन अनइवन होगी तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो अनइवन डिपोजिशन ऑफ मेटल हो जाता है हाई करंट देने से। ठीक है, और लॉन्गर टाइम एंड लो करंट जो है, लॉन्गर टाइम प्लस लो करंट, ये दोनों आप एक साथ दोगे तो एक यूनिफॉर्म थिक डिपोजिशन हो जाती हैं। ठीक है, तो एक फिर क्या होगा? थिक यूनिफॉर्म डिपोजिशन होता है। ओके, तो लो करंट लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि हाई करंट देने से एक अनइवन डिपोजिशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लो करंट में थिक डिपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब लास्ट हमारा कंडीशन बच गया है। क्या कंडीशन है? और डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट को यूज़ करना चाहिए। AC यानी ऑल्टरनेटिव करंट को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? करंट को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करंट को यूज़ करना चाहिए, AC करंट को नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका रीज़न है, अगर AC करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आप यूज़ कर सकते हो तो क्या होगा ना,
अनइवन डिपोजिशन हो जाएंगी फिर से, नो इफेक्टिव कोटिंग, ठीक है। जो AC करंट होगा वो डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन एट द कैथोड को बिल्कुल ऑल्टरनेट करता रहेगा, ठीक है, एट द कैथोड, ठीक है। सो AC करंट जो है वो हमारे आयंस का डिस्चार्ज कॉजेज डिस्चार्ज, जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है एंड आयोनाइजेशन, AC करंट कॉजेज डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन टू ऑल्टरनेट, ठीक है। डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन को बिल्कुल ऑल्टरनेट करवाएगा एट द कैथोड। कैथोड पे हमारा आर्टिकल टू बी प्लेटेड रखा हुआ है, दस गिविंग नो इफेक्टिव कोटिंग, फिर ना कोई भी इफेक्टिव कोटिंग नहीं चलेगी, thus no effective coating. So AC current causes the discharge and ionization to alternate at the cathode, thus giving no effective कोटिंग। बस ये 5 कंडीशंस हो गए। 5 कंडीशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 प्लीज़ आप अच्छे से देख के जाना। पहला है कि जो हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो आर्टिकल को हमें कैथोड बनाना है, जो मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसे हमें एनोड बनाना है। इलेक्ट्रोलाइट में उस मेटल की आयंस रहने चाहिए। AC करंट नहीं यूज़ कर सकते, DC करंट ही यूज़ करना है, लो करंट लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना है। ये आपके 5 कंडीशंस हो गए। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अब मैं आती हूँ टॉपिक वाइज एग्जाम्पल वाइज पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब हम एग्जाम्पल्स पे सीधा जाने वाले हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिकल, एक आर्टिकल की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे विथ सिल्वर। सिल्वर के साथ चलो एक आर्टिकल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। चलो, तो जाहिर सी बात है जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसे कैथोड बनाएंगे, सिल्वर के प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर को एनोड बनाएंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वहाँ पे बिल्कुल सिल्वर के आयंस होने चाहिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर ऑन द आर्टिकल, से ब्रास स्पून से हमारा जो कैथोड है वो ब्रास स्पून है, ब्रास स्पून पे मेरे को एक परफेक्ट डिपॉजिट पाना है सिल्वर का, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो स्पून को क्लीन करेंगे हम पहले, और कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ इसे वॉश करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी के साथ। तो फिर से डिटर्जेंट के साथ बहुत भी ज़्यादा क्लीन कर लेंगे। फिर स्पून को हम ड्राई करके उसे कैथोड बनाएंगे। मतलब बिल्कुल हमें क्लीन स्पून चाहिए। मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ इसका आपको, दो मैंने किसी का भी डायग्राम नहीं बनाया, मैं चलो इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊँगी। अरे यार क्या शेप बन जाता है, क्या बनाने जाती हूँ क्या शेप बन जाता है। चलो रेक्टेंगल बनाती हूँ इस बार, चलो बना कुछ तो से, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है। अरे तो पूरा हट गया, ठीक है जो भी है। सो दिस इज़ माई इलेक्ट्रोड, दिस इज सी एन ओपन एंड, ठीक है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ओपन एंड है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड आ रहा है। सॉरी ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वोल्टामीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनोड ले लिया है जो कि एक प्योर बिल्कुल मास ऑफ सिल्वर है। यहाँ पे है मेरा एनोड, यहाँ पे है मेरा एनोड जो कि बिल्कुल एक ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर है। एंड यहाँ पे आ गया मेरा कैथोड। बस थोड़ा सा वेट करो जी, हाँ हाँ यस। सो यहाँ पे मेरा आ गया एनोड, और यहाँ पे मेरा आ जाना है कैथोड। अब कैथोड मैंने एक स्पून को लेना, तो मैं रफ स्पून की ड्राइंग करती हूँ जो मेरे को आती नहीं है अच्छे से। सो ये है मेरा स्पून, बहुत ही अजीब दिखता है स्पून, आई नो, बट ओके लेट्स सी दिस इज़ माई स्पून। तो ये हो गया मेरा एनोड विच इज़ ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर, बिल्कुल शुद्ध सिल्वर, ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर। एंड ये हो गया मेरा कैथोड, कैथोड आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। चलो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, ठीक है। बिल्कुल सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। तो देखो मैं बैटरी सर्किट बना रही हूँ, पूरा सर्किट ऐसे इम्पोर्टेंट तो है नहीं बहुत कि अच्छे से बनाना है, अच्छे से बनाना है।
but anyway I am making yes. यहाँ से मैं एक बैटरी लगाऊंगी, रुको, हाँ यहाँ से मैंने एक बैटरी लगाई, यस, एंड यहाँ से एक लाइन, फिर एक सर्कल, इसमें मैंने लगाया एमीटर, ये हमारा एमीटर है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से थोड़ा सा निकालो, यहाँ से थोड़ा सा खींचो, यहाँ से थोड़ा सा निकालो और यहाँ पे थोड़ा सा ला लो, राइट, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे बन गया है। ये मेरा एमीटर है, ये मेरा बैटरी है, ये मेरा एनोड है, ठीक है, एंड ये जो है मेरा सोल्यूशन है। अब देखो सोल्यूशन में हमारे सिल्वर के आयन्स रहने हैं, बट ये ना हमने सिल्वर नाइट्रेट, जो सबसे कॉमन आपके दिमाग में आता है कि सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, वो नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है उसका भी एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, आएंगे। बट इससे जो हमने लिया है इसे कहते हैं सोडियम आर्जेंटो साइनाइड। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फॉर्मूला, NaAgCN, रुको फिर से, वेट, Na, हाँ, NaAgCN होल 2, ठीक है, ये हमारा हो जाता है सोडियम आर्जेंटो साइनाइड का फॉर्मूला। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यह सब हम डिस्कस करेंगे, मतलब टर्म्स बाय टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट इज QC yeah. So before that I want you to see point by point आपके क्या क्या चीज़ें बन रही हैं. So number 1 we have, let's do it with this pen. Number 1 is electrolyte. Electrolyte क्या बोल रहे हैं? Yeah, so first speaking about the electrolyte, first we need to analyze. হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে কালকে আমি স্কুল যাব না, বাবা JSW অফিসে যাবে, হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো। So first we are taking the electrolyte, which is going to be sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide. Okay, that is NaAgCN2, or we could also take potassium argentocyanide. Argentocyanide. ओके, पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड भी हम ले सकते हैं. Okay, now after we have discussed the electrolyte, now let's come to this.
Yes. After we've discussed electrolyte, let us now come to C. This sodium silver cyanide जो होता है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड या सोडियम सल्फर साइनाइड कैसे बनाते हैं हम पता है. सोडियम जो साइनाइड होता है, सोडियम का साइनाइड हम AgNO3 में डाल देते हैं. अब AgNO3 क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि AgNO3 जब अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे सोडियम साइनाइड के ऐड करने के बजाय, तो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. ठीक है, जो डिपोजिशन होगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमारा मतलब बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म या स्मूथ नहीं होगा. इसके लिए हम AgNO3 डायरेक्टली कभी भी नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट को? AgNO3 लेंगे और उसमें हम सोडियम साइनाइड डालने वाले हैं, जिसके बाद हमारे पास आएगा सिल्वर साइनाइड एंड NaNO3. ठीक है, NaNO3 आ गया बिल्कुल. फिर AgCN जो है हमारा सिल्वर साइनाइड, इसके साथ फिर से हम NaCN ऐड करने वाले हैं, जिससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाने वाला है. ठीक है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड. चलो बन गया. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका डिसोसिएशन कैसे होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इसका कैसे होने वाला है. डिसोसिएशन कैसे होगा? तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड पहले ले लिया बिल्कुल. ओके, तो इसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ऑब्वियसली डिसोसिएशन होता ही रिवर्सिबल है. तो हमारे पास Na+ आएगा, Ag+ तो आएगा ही, और हमारे पास 2 CN- आने वाले हैं, और उसके साथ हमारे पास पानी भी है. सो H+ and OH- इज बेसिकली ऑलरेडी देयर. देन एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड सारे कैटायंस चले जाएंगे, एंड जो आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है. ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ. Ag और Na, तो ऑब्वियसली Ag डिस्चार्ज होता है, और हमारा कैथोड किससे बना है? कैथोड बना है जो भी आर्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट होना है उससे बना है. राइट नाउ ये Ag आयन्स वहाँ पे जाते हैं और वो यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं. हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो Ag आयन है वो डिस्चार्ज होता है. Na+ भी जाता है, क्योंकि Na+ कैसे ही डिस्चार्ज होगा प्रेफरेंशियल सिलेक्शन में, Ag+ डिस्चार्ज हो जाता है. और Ag+ को हम क्या करते हैं, कैथोड में तो आयन्स की कमी नहीं है, तो Ag+ को हम Ag बना देते हैं, और उस पर यहाँ पे कोटिंग चढ़ जाती है. ठीक है, और फिर हम आएंगे एनोड पे. एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हमारा जो सिल्वर का मास होने वाला है ना, वो छोटा से छोटे होने वाला है. तो प्लेट ऑफ प्योर क्लीन सिल्वर यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे एनोड है और इसको ना इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल साफ हो जाता है. यहाँ पे प्लेट ऑफ प्योर क्लीन सिल्वर है. ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम एनोड है. ये जो Ag का एटम ले रहे हैं हम, ये हम एनोड से ले रहे हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट पे जा रहा है. जो ये Ag+ इलेक्ट्रोलाइट पे जा रहा है वो फिर कैथोड पहुंच रहा है ना, तो ये जो फिर कैथोड पहुंच रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट से बिल्कुल साइकिल बन गया है. ठीक है, मतलब एनोड में हमारे पास बहुत सारा सिल्वर है, तो वो जो सिल्वर है वो खुद सिल्वर आयन बन रहा है, और फिर वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो रहा है. ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट में घुस रहा है, जो फिर से कैथोड में जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर से वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है और डिपॉजिट हो रहा है. तो नेगेटिव आयंस जो है CN-, OH-, ये भी एनोड पे जाते हैं, बट कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है. ठीक है, ड्यू टू द नेचर ऑफ द कैथोड, ये दोनों ही एक्टिव, ये हमारा जो एनोड है ये एक्टिव एनोड है. ठीक है, तो देखो ये सारे तो माइग्रेट करते हैं बट कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता. तो फिर क्या होता है, जो हमारे एनोड में है जो एटम्स ऑफ सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और सिल्वर आयंस उनके सोल्यूशन में चले जाते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है. एंड जो सिल्वर आयंस होते हैं वो ब्रास स्पून पे अटैच हो जाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम एटम्स ऑफ सिल्वर विच डिपॉजिट ऑन द स्पून एज फर्न कोटिंग. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द कोटिंग विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ करंट पास. तो किस पे डिपेंड करेगी भाई? करंट कितना टाइम तक पास हुआ है, करंट टाइम. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनोड डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि एनोड से जो सारी सिल्वर एटम्स है वो आयंस में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में एंटर करती है, तो एनोड डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसका सेम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है. ठीक है, सो अगर वो कलर्ड होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तो इंटेंसिटी भी कलर की सेम रहती है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन भी सेम होता है, क्योंकि एक जगह से आयंस खींचे जा रहे हैं, एक जगह से आयंस आ रहे हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन
रिमेन्स सेम। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का देखा ना, कॉपर इलेक्ट्रोड से करने से ऐसा हो रहा था, वैसे ही स्पून को हम बाद से ले लेते हैं, फिर हम उसे पानी से धोते हैं। अब देखो, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करती सोडियम डायरेक्टली सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड की जगह, तो क्या होता ना, डिपोजिशन बहुत फास्ट होता, डिपोजिशन विल बी वेरी फास्ट, डिपोजिशन विल बी वेरी फास्ट। तो ये क्या होगा ना, मतलब नॉट स्मूथ होगा, डिपोजिशन बहुत फास्ट होगा, स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया हमारे सिल्वर के साथ, जो भी मैंने डिस्कस करना था आपके साथ कि सिल्वर के साथ हम कैसे करेंगे इसे इलेक्ट्रोप्लेट। बाबा তুমি তো একটু কটায় বেরোবে? ओके, सो एज आई वाज डिस्कसिंग कि डिपोजिशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, तो हमारी डिपोजिशन स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब हम आते हैं जल्दी से निकल के ऊपर। ये क्या चैप्टर में जल्दी से ख़त्म करना है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स एवर ऑफ योर सिलेबस। तो वी विल कंप्लीट इट क्विकली। बहुत सारा कंटेंट है, कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट है, बट ओके वी विल कंप्लीट। तो इसके बाद हम क्विकली चले जाते हैं इस टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। ये जल्दी जल्दी से निपटाएंगे, सब समझाऊंगी नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी डन हाफ ऑफ द स्टफ इन ये सिल्वर के साथ भी हमने बहुत ज़्यादा कर ही लिया है। सो वील जस्ट डिस्कस सम, ओके, some things, some important things we'll be discussing. ओके तो पहले तो जो है आयरन ना बहुत अच्छे से मतलब इजीली रस्ट हो जाता है। तो अगर आयरन पार्टिकल्स को निकल जैसे मेटल या टिन या जिंक से कोट करते हैं तो रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है ऐसे। तो हम इसलिए आयरन को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं प्लेट करने के लिए, आयरन को प्लेट करते हैं हम निकल के साथ। तो पहली बात तो निकल प्लेटिंग अगर होनी है तो जो आयरन पार्टिकल हमें कोट करना है, कैथोड बनाना चाहिए उसका, ठीक है, और हमारा जो निकल है वो एनोड बनाना चाहिए, प्योर निकल प्लेट को एनोड बनाएंगे। और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वहाँ पे निकल आयन्स रहेंगे, तो NiSO4 का सोल्यूशन लेंगे, NiSO4, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज़ होगा। ओके, तो हम पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं निकल सल्फेट, ठीक है, NiSO4। इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन दिखा देती हूँ मैं, कैसे ये डिसोशिएट करेगा। NiSO4 Ni2+ और SO4 2- और H2O H+ + OH- ऐसे कुछ डिसोशिएट करेगा। उसके बाद एट कैथोड क्या होने वाला है कैथोड पे, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ड्यूली क्लीन्ड, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जो होगा इज ड्यूली क्लीन, बहुत अच्छे से उसे क्लीन किया जाएगा। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ड्यूली क्लीन्ड। और फिर यस, ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर थिंग ऑल्सो, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ड्यूली क्लीन। एनोड में हम क्या ले रहे हैं, ब्लॉक ऑफ प्योर निकल, ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल,
block of pure nickel metal. Okay, I hope you have got it. So nickel sulfate we are using, and yeah, this is what we are using. So electroplating with nickel and silver is very important. Okay, reasons and conditions for electroplating is there: name of electrolyte sodium argentocyanide, nickel sulfate, electrodes which you are using, equations for the electrodes should be given. Okay, so electroplating में हमारे यहाँ इक्वेशन मिले हैं, और ये तो हो गया. अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा देखो. कैथोड पे बेसिकली द रिएक्शन विल बी, कैथोड पे कटायन जाएगा तो निकल जाएगा यहाँ पे, तो जो निकल जाता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और निकल बन जाता है. ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है. और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा जो निकल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गवा देता है और Ni2+ बन जाता है, जो कि फिर से इलेक्ट्रोलाइट के पास चले जाता है. ठीक है, तो ये होता है. और SO4 2- OH- ये दोनों ही जाते हैं, बट क्योंकि ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इसके लिए नहीं होता. तो निकल एनोड जो होता है वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और Ni2+ आयन्स देते हैं सोल्यूशन में. तो आर्टिकल टू बी प्लेटेड ऑलवेज हम कैथोड पे देंगे. इलेक्ट्रोलाइट जो मेटल की प्लेटिंग करे, उसका जो मेटल प्लेट हो रहा है उसका सोल्यूशन होना पड़ेगा सॉल्ट सोल्यूशन, और एनोड जो है वो उसी मेटल का स्ट्रिप होना पड़ेगा. ये आपका हो गया है इलेक्ट्रो प्लेटिंग का फुल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कुछ आ नहीं सकता. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल तो निहायत ईजी चीज़ है. ठीक है, ओके. तो ये हमारा हो गया डिपोजिशन होता है ऐसे एनोड पे. ठीक है, और ये हो गया डिस्चार्ज. ये चीज़ फिर से इलेक्ट्रोलाइट में भाग जाती है. चलो, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ाई करेंगे इसकी, वो है हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ये अब क्या नई बला है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. वैसे हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, बट बेसिक समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता क्या है. राइट, सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं बोलते, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं. आई एम सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे. Electrolytic refining is a process by which metals containing impurities are purified electrolytically to give a pure metals. Okay, so ये क्या है, एक process है. It is a process by which metals containing impurities, जिन metals में impurities होती हैं उन्हें electrolytically purify किया जाता है to give a pure metal. So it's a process by which metals containing impurities are electrolytically purified. So it's electrolytic refining is a process by which metals containing impurities are electrolytically purified, giving pure metals. ठीक है, impurities रहेंगी, electrolytically purify करेंगे, pure metals देंगे. चलो, अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. तो सबसे जो ज़रूरी यूज़ होता है कॉपर में, वायर में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के लिए. समझ में आ गई आपको बात? तो वायर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसमिशन के लिए. ये हमें पता होगा बात, है ना. सो वेट, हाँ जी, ज़रा रुक जाओ. हाँ, तो मैं ये बता दी हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक ये क्या होता है. अब देखो, कॉपर को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए ना बहुत ज़्यादा प्योर बनना बहुत ज़रूरी है. तो ये क्या है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. देखो कॉपर को हम कैसे रिफाइन करने वाले हैं. तो
क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना वो इसकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देती हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करने के लिए पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। देखो सब में इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है यहाँ पे, तो ठीक है सब में इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर लिए हुए हैं, ठीक है, और फिर स्ट्रैप्स ऑफ इम्प्योर कॉपर लिए हुए हैं, और सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट लेंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के एक सॉल्यूशन लेंगे, ओके। सो वी आर टेकिंग कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड solution. Are you getting me? Yes. Okay. So we have taken this, and what we are doing with the cathode? हम cathode किसको बना रहे हैं? Cathode हम बना रहे हैं, आपको learn करना पड़ेगा, thin strips of pure copper. पतली पतली strips लेंगे pure copper की. So thin strips of pure copper, हम pure copper लेंगे, और एनोड किसको बनाएंगे, slabs of impure copper, ठीक है। और इसे क्या लेंगे, थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर। कैथोड लेंगे थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर, एंड एनोड लेंगे स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर। चलो, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कॉपर सल्फेट और जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है उसे पास होगा जब करंट, तो जो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयंस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे कैथोड जो कि थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर है वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है कॉपर आयंस, ठीक है। जहाँ पे कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कॉपर आयंस को इन प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ये देखो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड एक्टिव है ना, तो इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और प्योर कॉपर जो स्ट्रिप्स है उन पे डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ में आ रही है तुम्हें बात? तो कैथोड को हमने कहाँ पे रखा है, थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर रखा है कैथोड पे। तो जो कॉपर आयन जाते हैं वहाँ पे जाके न्यूट्रल बन जाते हैं और फिर प्योर कॉपर पे डिपॉजिट हो जाता है। और जो इम्प्योर कॉपर है, अब देखो ये जो प्योर कॉपर के लिए जो आयन्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, इम्प्योर कॉपर से ना। तो इम्प्योर कॉपर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोल्यूशन में पास हो रहे हैं और सॉल्यूबल कॉपर आयन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही बात है, ऐसे ही इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं कि इम्प्योर आयंस जो हैं, इम्प्योर कॉपर के जो भी इम्प्योर कॉपर स्लैब्स में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन बन के जो है वो आयनाइज करके जो आयंस बन के सोल्यूशन में जा रही हैं, ठीक है। सो इट पासिस इनटू द सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल कॉपर आयंस विच आर देन डिपॉजिटेड इनटू द कैथोड। ये सारे कॉपर आयंस फिर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। जो इम्प्योर कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है और ये पास हो रहे हैं, और ये मतलब रिमूवल हो रहा है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो इसमें कैथोड एनोड रिएक्शन दे रखता है, कैथोड एनोड रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे कटायंस जाएंगे, Cu2+ जो है वो हमारा वो जाएगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे कैथोड से, और Cu बन जाएगा और डिपॉजिट हो जाता है जो हो जाएगा हमारे ये यहाँ पे थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर पे। और एनोड पे जहाँ पे हमारे स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर है वहाँ से क्या होगा भाई, वहाँ पे Cu2+ होगा कि Cu2+ आएगा, Cu वहाँ पे होगा ऑलरेडी, एंड वहाँ से हम -2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे Cu2+ बनाने के लिए, ओके। सो इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्योर कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये जो कॉपर आयंस है ये माइग्रेट करेंगे कैथोड में इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेशन, एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ठीक है। तो कैथोड से ये जो कॉपर आयंस है ये माइग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आयंस कैथोड में माइग्रेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो कैथोड पे बैठ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो नेट रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, जो इम्प्योर स्लैब्स है कॉपर की वो ना बिल्कुल फिनिश हो जाती हैं, ठीक है। और जो थिन स्ट्रिप्स होती हैं कॉपर की वो थिकर एंड थिकर हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉपर डिपॉजिटेड इज 99.9% प्योर। आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ओवर दी स्ट्रिप्स आर मेल्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायर्ड शेप्स। अब देखो कुछ जो इम्प्योरिटीज़ है, ये जो हमारी प्योर्स मतलब कि ये स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड बना के रखा है वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाती हैं, ठीक है, और पूरा थिकन एंड थिकन हो जाता है। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती हैं, या वाइल अदर्स जैसे सिल्वर या गोल्ड जो कि इनसोल्यूबल है वो एनोड के सामने कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो इम्प्योरिटीज़ विच आर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हम बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गेट डिजॉल्व्ड, कुछ नहीं डिजॉल्व होती तो दे सेटल डाउन नियर एनोड,
और इन जो इम्प्योरिटीज़ की सेटलिंग डाउन को हम क्या कहते हैं, इन्हें एनोड मड कहते हैं हम, एनोड मड, ठीक है, एनोड मड कहते हैं, ये रिकवर हो जाते हैं। तो देखो जिंक हो गया हमारा, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से ही तो होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी के चैप्टर में, जो कि है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। सो ये वाला हम इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं पढ़ेंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जो कि मेटलर्जी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले ही हैं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे मेटलर्जी पढ़ने की हमें कोई भी ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक आपको मैं नोट्स दिखाती हूँ, कितने सारे हमने नोट्स बनाए, काफ़ी सारे बना लिए हमने नोट्स पूरे चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर इतना लंबा है, बहुत सारे लेक्चर्स भी हो गए हैं। आई होप दैट यू कैन यूटिलाइज ऑल द लेक्चर्स, एंड इफ़ यू सी ऑल द लेक्चर्स, फुल चैप्टर विल बी डन एंड बहुत अच्छे से क्या होगा। एंड प्लीज़ रिवाइज दीज नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये आज के लेक्चर के नोट्स आपको मिल गए हैं, पहले वाले लेक्चर के भी थे। यहाँ पे मैंने देखो, आई हैव डिस्कस्ड ऑल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Okay, then see, we have discussed electrolysis of acidified water using platinum electrodes। यहाँ पे सब इक्वेशन हमने लिख के रखे हैं अच्छे से, ठीक है। Then I've also explained CuSO4 का कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दोनों से ही मैंने एक्सप्लेन करके रखा है बिल्कुल, ठीक है। देखो बिल्कुल एक्सप्लेन करके रखा है मैंने, कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ढली हुई है। और फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज किए हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल डिटेल्स में की हैं, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से डिस्कस किया है सारे विथ स्टेटमेंट एंड रीजनिंग। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिकल विथ सिल्वर सब दिखाया हमने डिटेल्स में सब कुछ, राइट। फिर निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमने देखी है, एंड लास्ट हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट, ये भी हमने देखा है। दिस इज ऑल्सो डन। प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डन, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फर्स्ट से जो किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट, सारा डेफिनेशन सब लिखा था हमने। ये हमने किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सारे डिस्कस किए, बेसिक से लेके बेसिक से उठाकर मैंने डिस्कस किए हैं। अब देख सकते हो बहुत सारे नोट्स है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज जो है वो भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, है ना। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। आई होप कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड आई होप टुडेज लेक्चर वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आई होप दैट यू कैन एक्चुअली बेनिफिट। वी विल ऑल्सो ब्रिंग अ क्वेश्चन सेशन, तब के लिए बाय बाय। देर आर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स दैट आई हैव डन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, मेक श्योर आप सारे देखें। फिर सारे देखते हैं तो फिर सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।